So good evening students, hope you are all well. तो आज मैं आपको डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड सम वेरी गुड काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेई मेन, जेई एडवांस एंड द नीट. सो लुक एट दिस. जो जनरल एक फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इट इज़ दिस कि किसी प्लेस पे इफ़ देयर इज़ अ चार्ज Q, ठीक है ना, देयर इज़ अ चार्ज Q in electric field at a distance x from it is equals to 1/4 pi epsilon naught into q by x square. अब मेरा कहना है कि ये तो एक पॉइंट चार्ज की ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई. अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड x का या x का फंक्शन है, डिस्टेंस का, या कांस्टेंट भी है. तो जो भी उस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को करेंगे माइनस ऑफ ई इंटू डी एक्स, अगर ये x का फंक्शन है. इज दैट क्लियर? तो और इसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम से इन्फिनिटी टू r, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट वी आर माइनस वी इन्फिनिटी. एंड जनरली बाय डेफिनेशन वी टेक दैट व्हाट वी इन्फिनिटी इज जीरो. वी इन्फिनिटी जीरो है तो यहाँ पे e एज अ फंक्शन ऑफ x डाला. अगर e x का फंक्शन नहीं भी होता, कांस्टेंट होता तो भी चलेगा. आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, और यह रहेगा आपका पोटेंशियल एट द पॉइंट वी आर. बिल्कुल द सेम थिंग इज ट्रू फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑल्सो. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए अगर m मास के ड्यू टू x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है माइनस ऑफ जी एम बाई एक्स स्क्वायर. देन सी दिस विल बी माइनस ऑफ जी एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r will be equal to Vr minus V infinity, where V infinity is what? 0. So you'll get the value of what? Vr. आपको r डिस्टेंस दूर क्या पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल पता लग जाएगा. अब दो तीन चीज़ों पे यहाँ ध्यान देना है कि जब आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना तो ध्यान देना है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है ये किस लिमिट में कंटिन्यूअस है. यू कैन इंटीग्रेट ओनली अप टू दैट लिमिट. Till those limits this is continuous. Just I give you one simple example, then I'll come to the those problems. Now see, just for example there's a uniformly charged solid sphere having charge q radius r. It's uniformly charged, means charge is distributed uniformly throughout its volume. And suppose you have to calculate the electric potential at a distance r/2 from the center of the sphere. At this point P you have to calculate the electric potential. Now see electric potential, if you know the other equation like electric potential in the surface, then we can integrate over this limit. Otherwise what we'll do, we know only the electric potential at the infinity is 0 and we know nothing. In that case see, electric field outside the sphere will be at this place at a distance x from the center of the sphere where x is greater than r. Electric potential will be what? 1/4 pi. Electric field will be 1/4 pi epsilon naught q by x square. Now this formula is applicable from x equals to r to x equals to infinity. So now minus of e into dx, integration from infinity to r, that equals what? Vr minus v infinity. So through this equation you get that Vr equals to, when you integrate you get 1/4 pi epsilon naught into q by r. There is electric potential at the surface. Now because we have to find the electric potential at this point, so electric potential at this point will be what? Now inside the sphere there is a different formula for the electric field intensity, and that formula is what? It is 1/4 pi epsilon naught into qx by r cube. So minus of e into dx, integration from r to r/2, that will be equal to what? V at r/2 minus v at r. Now we know the value of Vr, and by integrating this, keeping the limits, we can get what? V at r/2. So there are two things noticeable. First of all, how by the electric field intensity or by the gravitational field intensity electric potential or the gravitational potential is calculated. Second thing, you can integrate, the limits of integration can be taken only till that equation of electric field or the gravitational field is applicable. क्योंकि देखो अंदर एक डिफरेंट फार्मूला था तो आपने सीधे इंटीग्रेट नहीं किया कि आप करते हैं इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r/2, क्योंकि ये फार्मूला तो बाहर के लिए था, ये फार्मूला अंदर के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं था. इसलिए आपने इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या की? आपने इंटीग्रेशन की लिमिट पहले r तक की r पे निकाला, फिर आपने इस पॉइंट पे निकाला. इज दैट क्लियर? ठीक है ना.
अब मैं आपको, ये तो एक जनरल ये हुआ कि आपको ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालना होगा. नाउ सी आई फोकस अपॉन वन मोर थिंग. So the only thing is that there are some differences in the formula of the gravitational field and the electric field, and gravitational potential and the electric potential. But generally, like see what are the differences. In place of charge q in gravitational chapter, what we take mass m. In place of constant 1 upon 4 pi epsilon naught, here we take what, capital G. In place of charge q we take mass m. In place of 1 upon 4 pi epsilon naught we take capital G. And there are two more differences, like in electric field, the electrical repulsive as well as electrical attractive force is there. In case of gravitational field, only attractive force will be there. So because of positive and negative charges here, we have polarization phenomenon, and in case of masses, we don't have the polarization because there is only one kind of mass, that is what, positive mass. Is that clear? So I tell you one thing, like if there is, like see, look at this, if there is a direct calculation of electric potential, and you remember the formula for the electric potential, like what, at a distance r from a mass m, gravitational potential is what, V equals to minus of G m by r, you know this. And if you can directly use this formula to calculate the electric potential, that is even better. Means what कि खास तौर से इस वाले पार्ट में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर आपको सीधे उसका इक्वेशन पता है तो आपको अगर इंटीग्रेशन से निकालना, आप डायरेक्टली निकालते हैं तो और भी अच्छा है. मीन्स व्हाट कि बहुत ज़्यादा बेसिक्स पे ना जा करके आप एक फंडामेंटल से कैलकुलेशन स्टार्ट करके उस पॉइंट तक पहुँचेंगे, दैट विल टेक टाइम. सो नाउ सी लुक एट दिस एग्जाम्पल. जैसे आपसे बोला गया कि दिस इज ए ये एक एनुलर डिस्क है. एनुलर डिस्क मीन्स इसका अंदर का जो पार्ट है, दिस रेडियस इज 3r, दिस आउटर रेडियस इज 4r, मास इज ओनली इन दिस पार्ट, and this up to radius 3r, this part is what, hollow. Now at a distance x from its center, at a distance 4r, you have to calculate what is the electric potential. In fact, in the JEE main, when this question had come, the question was what work will have to be done in carrying a mass from infinity up to this point. What work will have to be done in carrying a 1 kg mass from infinity up to this point. So basically what they have asked is the definition of gravitational potential. The definition of gravitational potential is what? Work done to carry a 1 kg mass from infinity up to that point. That means when you get to know that work done to carry a 1 kg mass from infinity up to this point will be equal to potential of this point minus potential of infinity. So directly calculate what? Because potential of infinity is 0. So directly calculate the potential at this point. So use directly the formula for the electric potential, gravitational potential. Means what? Here we have its mass is given to be m. So you see mass of how much area is m? M upon 4 pi into 4r square plus minus of 3r square. This is the mass of unit area. This is the mass of unit area. I call it say sigma. This is the mass of the unit area. Now see here, if I take a ring of radius x and of thickness dx, this ring of radius x and thickness dx, this ring of thickness dx, gravitational potential due to this ring at this point will be minus of g, mass of this ring will be what? Sigma into 2 pi x dx. Sigma you will calculate from here, sigma 2 pi x dx. This is a minus g m upon what? This distance. So you see this distance from here will be what? This distance will be square root of 4r square plus what? X square plus x square. Its integration from x is the variable. Integration for the x from 3r to 4r. So this 3r to 4r, that will be the gravitational potential. So what I told you, if you know the directly formula, in that case that this will be the formula for the gravitational potential, but because due to some variation the formula is not directly applicable, then get the value of that quantity for a small element, integrate it. But see, if you don't have the formula for the gravitational potential or electrical potential directly, then you can also calculate that by using what?
by using the gravitational field or the electric field. Now see, in this was the basic definition, and today I wanted to focus upon one method that is called the method of superposition, and I have seen very often the questions have come in the JEE Main Advanced and the NEET based upon this method. This is a method of superposition. So first of all, see, I try to tell you the method of superposition. I try to tell you the method of superposition philosophically. Then I'll tell you how to get the equation for it. Look at this. Suppose you have a solid sphere, solid insulating, that is non-conducting sphere having charge q, and this is of radius r, and this charge q is uniformly distributed in it throughout its volume. It is uniformly distributed throughout its volume. Now in this sphere, you have cut a cavity of radius r by 2, or I make it more general, you have cut a cavity of radius a, at a distance small r from it, means r is less than r. R is the distance between the center of the sphere and the center of the cavity, and radius of the cavity is what? A. आपने इसे कट करके बाहर निकाल लिया. So when this material has been cut and removed from here, along with that the charge inside it has also been removed. वो charge भी बाहर आ गया. Now suppose you have to calculate what will be the electric field intensity at the center of the cavity. What will be the gravitational field intensity at the center of the cavity? See, what you have to do, the method is what? First of all, what you have to do is get the electric field intensity due to the entire mass, due to the entire sphere at that point where field is to be calculated. Say, suppose this point is O and this point is P. So what you'll do, suppose there is no cavity, this sphere is a complete sphere, due to that calculate the electric field intensity at the point P. I call that vector E1. This is what vector E1. And write the value of vector E1. I write the value of vector E1, you see it is this, 1 upon 4 pi epsilon naught into qx by q small r by capital R cube. ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली सॉलिड चार्ज स्फीयर, तो उसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर, जबकि x r से कैपिटल R से छोटा है, what will the electric field intensity? 1 upon 4 pi epsilon naught qx by r cube. Is that clear? And you should also know how to write this equation in some other form, because sometimes that is very useful. Look at this. I write this thing. इस केस में I'll tell the direction separately because this is a vector quantity. So I have written the direction. It's along what? OP. ये किस ओर होगी? This will be along the vector OP. बाहर की ओर होगी. मैं इसी इक्वेशन को एक और फॉर्म में लिखता हूँ. देखो. What I do? 1 upon 4 by epsilon naught. 1 upon 4 pi epsilon naught into Q R upon R cube. मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ. Q upon 4 by 3 pi R cube is what? Volume charge density. Q upon 4 by 3 pi R cube, because its total volume is what? 4 by 3 pi R cube. So I can write the electric field E in the form, electric field E1 equals to, this becomes 1 upon 3 epsilon naught. Is that clear? Q upon 4 by 3 pi R cube becomes rho. So this becomes rho. Is that clear? Rho upon 3 epsilon naught into what? Vector R. And this could be written in the form of vector R. That means it's a complete sphere. So at any point whose position vector is small r with respect to center, and that small r magnitude is less than capital R, in that case this will be the electric field intensity formula in the vector form. Now see, what I wanted to tell you was this, कि आपको इस कैविटी वाले फिगर से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. ठीक है, इस कैविटी वाले फिगर से इसके सेंटर पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. आपने क्या किया? पूरा कंप्लीट स्फीयर where there is no cavity, due to that you calculated that what be the electric field intensity at the center. Now what you do, अब तुम्हें क्या करना है कि what part has been cut and removed, calculate what will be the charge on that. आप ये calculate कर लो उस पार्ट के ऊपर चार्ज कितना होगा, उस पार्ट के ऊपर चार्ज
मैं यूनिटरी मेथड से निकालता हूँ, इट विल बी क्यू बाई 4/6 पाई, मैं इसे रो लिख लेता हूँ, ठीक है ना। रो इज व्हाट, q upon 4/3 pi r cube, which you can calculate if the parameters q and r are given. There is a charge on unit volume. So what will be the charge in the radius a sphere? It will be 4/3 pi a cube. I write that this is charge q1. अब तुम्हें दूसरी चीज़ क्या करनी है कि जो स्फीयर आपने कट करके निकाला है उस स्फीयर के पास देयर इज ए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, और कितना पॉजिटिव चार्ज है, इतना पॉजिटिव चार्ज है। अब आप ये मानो कि जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, आपने उस वॉल्यूम में उतना ही नेगेटिव चार्ज फिल कर दिया। पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या किया आपने, एक ऐसा स्फीयर बनाया जिसमें कि जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, आपने उस स्फीयर के ऊपर उतना ही क्या किया, नेगेटिव चार्ज समझ लिया कि देयर इज दिस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन दैट, एंड ड्यू टू दैट नेगेटिवली चार्ज स्फीयर get the expression for the electric field intensity at the point P, that is vector E2. So vector expression means what, magnitude and direction both. By the way, you know that कि electric field intensity at the center of a sphere, uniformly charged center of a sphere, charge center at the center of the uniformly charged sphere is what, 0. So that becomes what, 0. Now the concept is what, the net electric field intensity at this point due to the figure that has got a cavity, E will be equal to what, it will be vector E1 plus vector E2, and that is not Q only for this point, that is true for any other point. Suppose you want to get the gravitational field, electric field intensity at this point, आपको करना क्या है, आप पूरे इस फिगर से इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है ना। उसकी डायरेक्शन इस ओर आएगी, जबकि पूरा कंप्लीट है, देयर इज नो कैविटी एंड इट हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी डायरेक्शन इस ओर आएगी। देन डू व्हाट, जो कैविटी वाला पार्ट है उस पार्ट में व्हाट वुड हैव बीन द पॉजिटिव चार्ज, आप उसकी जगह उतना नेगेटिव चार्ज उसमें फिल कर लो, और उस नेगेटिवली चार्ज स्फीयर की वजह से यहाँ पे दूसरी ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, दैट इज वेक्टर E2। नेगेटिवली चार्ज है, इसकी ओर आएगा वेक्टर E2। दिस एट दिस पॉइंट वुड हैव बीन वेक्टर E1 एंड दिस वुड हैव बीन व्हाट, वेक्टर E2। और फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का सम कर दो, दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। सो यूजुअली व्हाट, व्हेन दे गिव द क्वेश्चन इन द JEE मेन एडवांस और नीट एग्जाम, दे डू व्हाट, उसे थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, दे डोंट टेक एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। नाउ आई बी स्पेसिफिक हियर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इसके सेंटर पे, कैविटी के सेंटर पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सिखा दिया, ये एक्सप्रेशन आपका आ ही गया, और ये वाला 0 है, सो इट विल बी दिस मच, इज दैट क्लियर। और जो भी इसका वेक्टर सम आएगा, जैसे इट इज अलोंग व्हाट, इट्स अलोंग OP, बाहर की ओर है, तो डायरेक्शन भी आपकी आ गई OP के अलोंग। नाउ यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, एंड इट विल बी व्हाट, it will be same as what is electric field intensity at the center of the cavity, ठीक है ना। जो सेंटर ऑफ द कैविटी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। सो अगर आपको किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे कैविटी के अंदर बोलते हैं, तो कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द कैविटी, विच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, और आ जाएगा, ठीक है ना। अब या फिर इसी में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वो लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं दैट इज व्हाट, कि वो बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, मतलब स्पेसिफिक हाउ, उन्होंने बोला कि सेंटर ऑफ द स्फीयर, कैविटी वाले फिगर के साथ जो ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। आप दो यहाँ पे E की वैल्यू में डायरेक्टली लिखता हूँ, इक्वल्स व्हाट, जो ये वाला पार्ट है कंप्लीट स्फीयर है, इसके ड्यू टू यहाँ पे क्या आ जाएगी, फील्ड 0। अब जो कैविटी वाला है पार्ट, इसके ड्यू टू यहाँ पे फील्ड क्या आएगी, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, इस नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के ड्यू टू यहाँ पे फील्ड किस ओर होगी, इसके सेंटर की ओर होगी। सो दैट बी व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू वॉट, जो अभी हमने निकाला था इसका चार्ज, रो, ठीक है ना, रो इंटू वॉट, 4/3 पाई A क्यूब अपॉन वॉट, और ये इसके बाहर वाला है, ये जो पॉइंट है ना, इसकी कैविटी के बाहर है, तो कैविटी के बाहर कोई भी स्फीयर है, उसके सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है, R, सो आपने क्या किया यहाँ पे R स्क्वायर, और आपने लॉजिक से वेक्टर सम बता दिया, ये जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है उसके ड्यू टू यहाँ पे फील्ड 0 हो गई, कैविटी वाले फिगर के ड्यू टू फील्ड यहाँ पे क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू इस पॉइंट पे फील्ड इसकी ओर होगी। सो दैट इज अलोंग व्हाट, OP। आई हैव सीन की JEE मेन में या नीट में कई बार दे ओनली आस्क द डायरेक्शन,
तो आपको डायरेक्शन भी तभी पता होगा जब आपको पता कि वेक्टर E1 क्या है और वेक्टर E2 क्या है। मतलब आप समझ गए ना, किसी भी पॉइंट पे निकालना। E1 क्या है, जो कंप्लीट स्फीयर है उसके ड्यू टू उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैनी टू डायरेक्शन दोनों। और E2 क्या है, E2 वो है कि जो कैविटी वाला पार्ट है उस कैविटी वाले पार्ट में कितना पॉजिटिव चार्ज आता उतना ही आपने नेगेटिव चार्ज फिल कर दिया, और उस नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के ड्यू टू जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मैनी टू डायरेक्शन दोनों में निकाली, ये वेक्टर E2 है। और बाद में आपने दोनों वेक्टर्स का वेक्टर E1 और E2 का क्या किया, सम कर दिया। अब मान लो कि आपको बाहर किसी पॉइंट पे निकालनी होती है यहाँ पे, तो कंप्लीट स्फीयर के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस वाले पार्ट के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये वाला पार्ट है इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के ड्यू टू इस ओर होती और कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज के ड्यू टू इस ओर होती, तो उनका जो भी डिफरेंस होता, ठीक है ना, डिफरेंस होता मतलब वेक्टर सम होता, दैट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। नाउ आई मेक वन मोर पॉइंट क्लियर, ठीक है ना, मैं एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ। दैट इज व्हाट, वो पॉइंट है कि अगर आपको इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता तो भी क्या होता, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले आपको सीधे याद हैं, ठीक है ना, जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले डायरेक्टली याद हैं उसमें भी बिल्कुल यही एप्लीकेबल होता। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने, इस पूरे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच देयर इज नो कैविटी, उसके ड्यू टू यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो निकाल लो। फिर ये जो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसके ऊपर इतना चार्ज है, याला चार्ज है, उसके ड्यू टू यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल निकाल लो और उनका सम कर दो। साइन के साथ पॉजिटिव वाला पोटेंशियल प्लस जो नेगेटिव पोटेंशियल है उनका सम कर दो, दैट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही चीज़ बिल्कुल एप्लीकेबल है ग्रेविटेशनल, उसके लिए भी आप देखें क्वेश्चन आया था अभी मे बी कोई 2-3 साल पहले जेईई मेन में क्वेश्चन था। उसमें क्या था कि एक कैपिटल स्मॉल ए मास और आर रेडियस का स्फीयर है, स्मॉल ए मास और स्मॉल कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, इसके सेंटर से और यहाँ पे एक यहाँ से एक कट की गई है कैविटी की रेडियस r/2 है। दे हैड आस्क्ड कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा कैविटी के सेंटर पे, दिस पार्ट हैज बीन कट एंड रिमूव्ड, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो अब देखो होता क्या है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ता कि अगर ये पूरा कंप्लीट मास m है तो उसके ड्यू टू यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V1 होता, उसके ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता, V1। अब आपको होपफुली मे भी बहुत से बच्चों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कंप्लीट स्फीयर के ड्यू टू उसके अंदर के किसी पॉइंट पे क्या होगा याद नहीं होगा, बाहर के पॉइंट पे मे भी आपको याद होगा -gm/x, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आपको मे बी की सरफेस का भी याद हो -gm/r, लेकिन आपको इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर कितना होगा अंदर, जबकि x r से छोटा नहीं याद होगा। तो सीधे मैंने क्या बोला, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का याद है, उसके ड्यू टू निकाल लो। हाउ, लुक एट दिस, आप ठीक से देखना, यह आपका आ गया -gmx/r³, ये हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, -e इंटू वॉट dx, इंटीग्रेशन कोई एक ऐसी लिमिट यूज़ करो जहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल हो और जहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद हो। तो मैंने यहाँ पे किया r और ये आ गया r/2, दिस इज vr/2 माइनस vr, और vr की वैल्यू में भी आपको याद होगी -gm/r। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, आप देखेंगे दिस बिकम्स, मतलब इस कंप्लीट स्फीयर के ड्यू टू यहाँ पे पोटेंशियल -gmx/r³, ये तो हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, माइनस दिस थिंग इंटू dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम r to r/2, that becomes equal to v of r/2 which is to be calculated minus of v at r, और v at r की वैल्यू मैं सीधे लिखता हूँ माइनस ऑफ g, ठीक है ना, ये माइनस है फिर माइनस आएगा इसके अंदर माइनस ऑफ gm/r, इज दैट क्लियर। तो इसके थ्रू आपको v1 ये आ गया, दिस व्हाट v1 आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या बताई, इसके अंदर जितना मास आता, कितना मास आता, m/4/3πr³ इंटू वॉट 4/3πr/2³, इतना मास आता, विच हैज़ बीन m/8। आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी वॉट m/8। सो m/8 मास के स्फीयर के ड्यू टू, पॉजिटिव मास के ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव है, और नेगेटिव मास, इतना नेगेटिव मास फिल करते हैं m/8। मतलब आप लेते कि एक नेगेटिव मास m/8 का एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और उसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता। सो आप देखो ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जैसे
एम मास और आर रेडियस के सरफेस पे पोटेंशियल अगर है माइनस ऑफ जी एम बाई आर है, माइनस ऑफ जी एम बाई आर, तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा माइनस ऑफ 3/2 जी एम बाई आर, ठीक है ना। सो अब V2 की वैल्यू यहाँ पे V2 मीन्स व्हाट, इस निगेटिवली चार्ज मास, निगेटिव मास वाले स्फीयर के ड्यू टू सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी माइनस ऑफ जी एम बाई 8 अपॉन व्हाट, उसका रेडियस कितना है r/2, और माइनस नहीं आएगा क्यों, क्योंकि मास नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव। इन द आंसर विल बी व्हाट V1 प्लस V2, दैट विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू day after tomorrow once again at the same time. So please be there. Once again you'll be getting some very important concept for the JEE Main NEET Advance. All right, so I'll wait for you at 8 PM day after tomorrow. ठीक है, हो गया।